What is inflammation? We have seen thousands of times that inflammatory response of vascularized connective tissue towards injury. Acute is rapid in onset, short duration. Specific inflammatory processes occur. Then vascular events are initial stages, transient vasoconstriction followed by prolonged arterial dilation. There is increased blood flow to the inflamed area that makes it red and hot, and there is increased microcirculation permeability. Microcirculation changes are permeability increases, endothelial cell change occurs, protein-rich fluid leaks out, and that's called as exudate. The cellular events that happen are, and what is the role of WBC? We will see the primary responsibilities of the WBC are to enter the injured area, eliminate the injury cause, and remove the dead and necrotic tissue, and prepare the area for repair. Inflammatory mediators are produced by the local mast cells and resident macrophages, and their effects are vasodilation and increased permeability. So the vascular compartment, there is an injury, and to the vascular compartment, what will happen? There will be microcirculation. Normally there is microcirculation, and the endothelial gaps will be there. And from the what is this? Basement membrane, injury site, and phagocytosis. Okay, so the WBCs will leak out, will go to the injury site, and they will do phagocytosis. Neutrophils, macrophages, they will do phagocytosis. Okay, this was the diagram of WBC migration from vascular compartment. There is microcirculation, they will cross the endothelial gap, then the basement membrane, they will go to injury site, and they will do the phagocytosis. Okay. So what is normal blood flow characteristics? There is linear blood flow, and from the center WBCs will be flowing, ठीक है. Then from the center WBCs will be flowing. In the middle layer will be RBCs will be there, ठीक है. And outer layer there will be what छोटे छोटे platelets will be there. And outermost plasma will be flowing, plasmatic zone. ठीक है. Inflammatory white blood cell का migration, endothelial changes. अब ये सेल है, इसका retraction होगा, gap formation होगा, basement membrane expose हो जाएगा. Migration mechanism कैसा है? WBC move from the vascular compartment through the microcirculation to the injury site, and its primary goal is phagocytosis. Normal blood flow का characteristic क्या है? There is linear blood flow, plasma cell free area. प्लाज्मा मतलब सेल फ्री एरिया, लार्जर ब्लड कंपोनेंट सेंट्रली लोकेटेड हमने देख लिया, और स्मॉलर ब्लड कंपोनेंट्स जो है दे पोजिशनड ऑन द साइड्स. व्हाट आर द चेंजेस इन द इन्फ्लेम्ड एरिया? की हेमोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर आर्टेरियल डायलेशन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंटरिंग द इन्फ्लेमेटरी रीजन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एलिवेशन, vascular permeability, endothelial cell shrinkage, and protein rich fluid exudate escaping into tissues known as exudation process. Hemoconcentration, remaining blood components become concentrated, and blood viscosity increases, ठीक है. And there is blood flow velocity decreases. blood flow progression कैसा होता है? ये hemoconcentration नई चीज़ देखिए इस बार. blood flow progression कैसे होता है? increasing incoming blood, reduce outgoing blood. तो development of stasis, lowered circulation. cellular rearrangement कैसा है? RBC behavior, RBCs begin sticking together, form larger clumped masses, disrupt the normal linear flow pattern. WBC displacement कैसे हो जाता है? Push from the central circulation, margination occurs. WBCs move towards the vessel periphery. वो सेंटर से जा रहे थे, पेरिफेरी पे गए. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, केमिकल एक्टिवेशन. हिस्टामिन रिलीज प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल ग्रैन्यूल स्टिमुलेट्स endothelial cell activation. It activates the endothelial cell and increases the cellular adhesiveness. Endothelial cell response activation triggers increased permeability, develops sticky interaction with WBC. Okay, now we will see inflammatory process कैसे हो रहा है. नॉर्मल ब्लड फ्लो था, इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर आ गया, आर्टेरियल डायलेशन हो गया, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ गया, आरबीसी क्लम्पिंग हो गया, डब्ल्यूबीसी मार्जिनेशन हो गया, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं अभी, और उन्होंने ये सारा स्टिकी बना दिया है, एंडोथेलियल सेल को स्टिकी बना दिया है, और देयर इज स्टिकी एक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम एंड डब्ल्यूबीसी. अगली बात आती है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. कौन कौन से है? हिस्टामिन, थ्रोम्बिन, ग्लूकोट्राइन्स, C4D4, ये जो है ना, देयर की इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस. एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन मैकेनिज्म, ग्रैन्युल एक्टिवेशन प्रोसेस. स्पेशल ग्रैन्युल्स विद इन द एंडोथेलियल सेल्स कंटेन प्री-फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स. व्हेन स्टिमुलेटेड, ग्रैन्युल्स मूव टू द सेल सर्फेस एंड रिलीज द मॉलिक्यूलर हुक्स फॉर WBC अटैचमेंट. ये क्या बोल रहा है? स्पेशल एंडोथेलियल सेल का एक्टिवेशन प्रोसेस देख रहे हैं, ग्रैन्युल एक्टिवेशन प्रोसेस. स्पेशल ग्रैन्युल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल में, और जो कि प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, स्पेशल ग्रैन्यूल्स के अंदर प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हें जब स्टिमुलेट किया जाता है तो ये ग्रैन्यूल सेल सर्फेस पर चले जाते हैं, ठीक है. एंड दे रिलीज, ये ग्रैन्यूल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर स्पेशल प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स हैं. ये जब बाहर आएंगे तो ये जो ना, ये हुक ऐसे फॉर WBC अटैचमेंट ये हुक बना देंगे, और ये वीबल पैलेट बॉडी, स्पेशल ग्रैन्यूल्स इन एंडोथेलियल सेल्स एंड प्लेटलेट्स कंटेन एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्म द सेल्स इनटू स्टिकी सेल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. वीबल पैलेट बॉडीज, ठीक है. देन इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस आता है, वीबल पैलेट बॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं, एडिशन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है. ये जो स्पेशल ग्रैन्यूल्स थे वीबल पैलेट बॉडीज, उनके अंदर एडिजन मॉलिक्यूल होता है ना, तो एडिजन तो वो मतलब पकड़ना, स्टिकी वाली चीज़. ल्यूकोसाइट एडिजन मैकेनिज्म. WBC कैरेक्टरिस्टिक्स देयर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस विद स्टिकी मॉलिक्यूल्स. वेट देयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस विद स्टिकी मॉलिक्यूल्स ऑलवेज प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इन्फ्लेमेशन. अच्छा, उनके पास ये होता है, और ये हमेशा रेडी होते हैं, प्रिपेयर होते हैं. दे कंटेन स्पेशल शुगरी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज ऑलिगोसैकेराइड्स. WBC के पास शुगर है, ऑलिगोसैकेराइड है. सिलेक्टिन्स, व्हाट आर सिलेक्टिन्स? दे आर द मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोटीन्स, पी सिलेक्टिन्स, एडिशन प्रोटीन्स, और ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन प्लेटलेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये, एक्सप्रेस्ड ऑन द एंडोथेलियल सेल सरफेस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. ये जो पी सिलेक्टिन्स है ना, ये एंडोथेलियल सेल की सरफेस पे दिखाई एक्सप्रेस होते हैं. एडिशन प्रोसेस डायनामिक्स. इंट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, रैपिड ऑन ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, नॉट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लड फ्लो एंड द इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स. ये कुछ हमेशा चलने वाली प्रोसीजर नहीं है, ऑन ऑफ चलती रहती है, बंद होती है, चलती बंद होती है. अब ये जो स्लेट शुगर है ना, वो एडिशन मॉलिक्यूल है WBC सेल के टिप्स पे, WBC के टिप्स पे, और जो पी सिलेक्टिन है वो है एंडोथेलियल सेल सरफेस पे.
इसका कम बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंड करता है WBC को और एंडोथेलियल सेल को, ठीक है। और ये जो शुगरी प्रोटीन जो ओलिगोसैकेराइड था ना, ये WBC पे था। सिलेक्टिन जो है ये एंडोथेलियल सेल पे है। Inflammatory response steps, chemical mediators stimulate the endothelial cells, and Weber palate bodies release adhesion molecules, or WBC with sugary molecules interact and temporary adhesion occurs, and leukocytes like WBCs potentially migrate to inflammation site. Selectin molecules, types of selectin, P-selectin, E-selectin. P-selectin preformed होता है, rapidly जल्दी से एक्सप्रेस हो जाता है, ये हमें पता है, एंडोथेलियल सेल पे होता है, या द की प्लेस इन द सेल का एडिशन, ठीक है। तो जो P-selectin है रैपिडली एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, और इट इज फाउंड इन एंडोथेलियल सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ई सिलेक्टेड है सेकंड वेव ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, ओनली फाउंड ऑन एंडोथेलियल सेल्स एंड ओनली ऑन एंडोथेलियल सेल, इट इज ऑन प्लेटलेट एज वेल एज ऑन एंडोथेलियल सेल, एंड ई सिलेक्टेड टेक्स लॉन्गर टू अपीयर। और सिलेक्टिन का मैकेनिज्म कैसा है, एनेबल्स द इनिशियल वीक एडिशन ऑफ WBCs। अब ये एंडोथेलियल है, एंडोथेलियम है, इस पे पहले तो WBCs का ये वीक एडिशन कराएगा, अलाउज रोलिंग मूवमेंट अलोंग द वेसल वॉल। अब ये जो वेसल की जो वॉल है इसके अलोंग ना ये रोलिंग वाला मोशन करेगा, वीक एडिशन करेगा, और इंटरेक्शंस मीडिएटेड बाय ओलिगोसैकेराइड शुगर्स। और जो ओलिगोसैकेराइड शुगर्स हमें पता है वो WBCs पे है, शुगर ऑन WBC। इनिशियली डायनामिक चेंजेस क्या है, ब्लड फ्लो डायनामिक्स शिफ्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, fluid becomes protein rich and traffic slows down. RBC begin bumping into blood vessel walls, and WBCs start margination process, moving to the vessel edges. Rolling mechanism, WBCs touch and tumble along the endothelial surface. Movement characterized by loose intermittent adhesion. Cytokine and chemokine involvement कैसा है, early inflammatory mediators कौन कौन से, interleukin और TNF, produced 1 to 2 hours after the injury, activated by the mast cells and macrophages. अब they require genetic machinery activation. Chemokines जो है वो जैसे interleukin 8 specifically neutrophil को attract करता है, endothelial cells capture the chemokines on the surface, and purpose is stabilize the WBC movement and facilitate tissue entry. टिश्यू के पास एंट्री कराने का ये फैसिलिटेट करते हैं। WBC एक्टिवेशन स्टेजेस, इनिशियल मार्जिनेशन, लूज रोलिंग, कीमोकाइन मीडिएटेड फॉर्म एडिशन, ठीक है। ये जो इंटरल्यूकिन 8 है ना, स्टेबलाइज WBC मूवमेंट, अच्छा, तो कीमोकाइन मीडिएटेड फॉर्म एडिशन और पोटेंशियल टिश्यू माइग्रेशन, तो टिश्यू की ओर जाना। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, इंजरी हुई है, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हुआ है, सिलेक्टिन एंडोथेलियल सेल पे एक्टिवेट हो गया, WBC रोलिंग हो रहा है उसके शुगरी उससे, और फिर कीमोकाइन बाइंडिंग हो जाता है एंडोथेलियम पे, और फिर फॉर्म एडिशन होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, let's now get the overview of the cellular interaction mechanism. Key molecular players, selectrins on the endothelium, chemokines and the integrins, ठीक है, और इंटरसेलुलर एडिजन मॉलिक्यूल्स। हाँ, अभी मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है, इंटीग्रीन का स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स, 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन, ठीक है। अल्फा चेन और बीटा चेन, ये जो 2 पेप्टाइड चेन्स है ये टोटल इंटीग्रीन होता है, ठीक है। इनिशियली लो एविडिटी, लो स्टिकी स्टेट होता है इसका, इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंज व्हेन स्टिमुलेटेड। और एक्टिवेशन ट्रिगर्स कौन कौन से, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरल्यूकिन 1, TNF और कीमोकाइन, ये सब जो है इंटीग्रीन का कन्फर्मेशनल चेंज करा देते हैं। पहले वो लो स्टिकी होता है, मतलब उतना भी स्टिकी नहीं होता है। अब देखेंगे एडिजन मैकेनिज्म्स, पहले WBC इंटरेक्शन के स्टेजेस देखना है। पहले मार्जिनेशन, WBC मूव टू वेसल एज, रोलिंग, लूज इंटरेक्शन वाया सिलेक्टिन्स, एक्टिवेशन, कीमोकाइन स्टिमुलेशन, फॉर्म एडिजन, इंटीग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका मेटाफोरिकल कैसे हम याद रख सकते हैं, कंपेयर टू सिलेक्टिंग अ पार्टनर एट अ पार्टी, इनिशियल टम्बलिंग फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन। पहले टम्बलिंग करते हैं, रोलिंग 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 हो रहा है, एंड देन कीमोकाइन स्टिमुलेशन है, और देयर इज फॉर्म एडिजन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर वो अच्छे से स्टिकी बन जाता है। इंटीग्रीन मतलब इंटीग्रेट करना, और पहले इंटीग्रेट मतलब फॉर्म एडिजन करना, ठीक है। और पेवमेंट प्रोसेस देखो, ये WBC स्टिक टू द एंडोथेलियल सेल्स, रिजेंबल पेबल्स इन अ रिवर, एंड ब्लड कंटिन्यूज फ्लोइंग अराउंड द एडियर्ड सेल्स, ठीक है। पेवमेंट मतलब पता है ना तुमको, ये जो स्टाइल से एक दूसरे से चिपकी रहती है उसको पेवमेंट बोलते हैं। और उसी तरह एंडोथेलियम पे ये WBC चिपकी रहेंगी जस्ट लाइक पेबल्स इन अ रिवर, और वहाँ से ब्लड फ्लो कंटिन्यू रहेगा अराउंड द एडियर्ड सेल्स। और इन्फ्लेमेशन इवेंट्स, वास्कुलर इवेंट्स देख लिए, आर्टेरियल डायलेशन, इंक्रीज परमिएबिलिटी दैट मेक्स इंजर्ड एरिया रेड हॉट एंड swollen. देन सेलुलर इवेंट्स देखिए, WBC माइग्रेट फ्रॉम सेंटर टू वेसल एज, इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन और चेंज इन द ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो WBC है, माइग्रेशन हो गया है, रोलिंग टम्बल करता है, फिर कीमोकाइन स्टिमुलेशन होता है, तो इंटीग्रीन एक्टिवेट होकर फॉर्म एडिजन होता है और पेवमेंटिंग होती है, ठीक है।